Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. तो आज के आर्टिकल से हम कुछ 20 questions उठाएंगे and let me see if you are able to answer and understand them all. तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा पहले वो देख लीजिए because उसमें हमने आज के आर्टिकल्स कवर किए हैं. So let's start with the first question कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन is responsible for the implementing of one nation one subscription scheme और इसका आंसर है InflibNet which is Information and Library Network. तो इसका आंसर है B. Let's see the next question. Who has been appointed as the interim prime minister of Syria? और ये है मोहम्मद अल बशीर. आज के आर्टिकल में हमने अच्छे से कवर किया है. Yes, the answer is B. Next question है which of the following countries does not share a border with Syria? This is a tricky question. Let me see if you remember. Turkey, Israel, Jordan, Lebanon share करती है. ईरान शेयर नहीं करती. Okay, so therefore your answer is C. ईरान. Next question है which is the headquarters of International Solar Alliance. Now, International Solar Alliance आज हमने किया है and yes इसका headquarters है गुरुग्राम हरियाणा में. Therefore your answer is D. अगला क्वेश्चन है what prestigious award has Madhav Gadgil received in 2024? And yes, we've seen today's article Champions of the Earth Award. और ये कौन इसको देता है? ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये अवार्ड देती है. 2005 से इन्होंने अवार्ड दिया है. एनवायरनमेंट के सेक्टर में जो बहुत अच्छे काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है. Let's see the next question. Which region is Madhav Gadgil particularly renowned for his work in? तो हमने देखा है कि वेस्टर्न घाट्स के लिए उन्होंने एक पैनल हमने देखा था माधव गाडगिल रिपोर्ट राइट. वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट पैनल यहाँ पे उन्होंने चेयर किया था टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन. तो 2011 का ये पैनल है. तो आंसर वाज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण अभियान. और यहाँ पे आंसर आपको क्या है विद रिगार्ड टू मैल न्यूट्रिशन रिड्यूस करना, प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन एंड लैक्टेटिंग मदर. सो यस द आंसर इज सी. इट्स अ वेरी इजी आंसर. पोषण हमने देखा था अर्स्टवाइल इट वाज कॉल्ड एज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. 2018 में ये स्कीम आया था ऑन Women's Day. Women's Day. Let's see the next question. Which ministry is the nodal agency for implementing the पोषण अभियान? कौन सी मिनिस्ट्री है? Ministry of Women and Child Development. Okay, so answer to this is B. अगला क्वेश्चन है what is the primary objective of PM Jan Man scheme? It is with regard to primitive, particularly vulnerable tribal groups, and yes, the answer to this is B. अगला क्वेश्चन is which ministry is responsible for implementing the PM Janman scheme? ये ट्राइबल के लिए है तो ट्राइबल अफेयर्स करेगी राइट. तो इसका भी आंसर बी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं? इट इज इन ओडिशा. टोटल नंबर ऑफ पीवीटीजीज कितने हैं? 75. ठीक है, और इसमें से 13 ओडिशा में है. एंड कितने स्टेट्स में पीवीटीजी ग्रुप सिचुएटेड है? 8 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी विच इज अंडमान एंड निकोबार. तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट्स भी याद रखने हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the primary objective of the Gaganyaan mission? The primary objective is with regard to humans को space में भेजना. So therefore your answer is B. To demonstrate India's capability to send humans to the low Earth orbit 400 किलोमीटर above. What is the planned duration? कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए ये humans space में होंगे? 3 days, right? 3 days, 3 astronauts हमने देखा था. Yes, so you have to tell me in the answer what are the name of the 4 में से 3 एक बैकअप है, 3 जाएंगे. तो आप मुझे चारों का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. Let's see the next question. Who is the current chairman of the राज्यसभा? यहाँ पे we've also seen some हमने एक राज्यसभा का पूरा एक आर्टिकल देखा था तो उसमें से हमने passages में questions उठाए. Let's see how much you remember of it. करंट चैंपियन है जगदीप धनकर हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगला क्वेश्चन है टर्म ड्यूरेशन क्या है ऑफ ईच मेंबर का टर्म है 6 साल एंड एवरी 2 years वी सी दैट दे गेट रिटायर्ड. ओके, दे गेट रिमूव्ड. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नॉमिनेट पूछा है, सिर्फ 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं फ्रॉम फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंसेस. सो यस द आंसर इज बी.
व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, सो आंसर विल बी 250. ओके, सो आंसर टू दिस इज बी 250. अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ पूछा है ऑफ द राज्यसभा एंड द प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 245. सो रिमेंबर, प्रेजेंट स्ट्रेंथ 245, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250. ओके, सो दिस इज योर 18th क्वेश्चन. 19th क्वेश्चन है, कितने मेंबर्स ओके रिटायर होते हैं हर 2 साल में. सो वी नो दैट 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, लेकिन पूरा टर्म जो एक मेंबर का होता है दैट इज 6 years. And the last question of the day, पहले चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन थे? दिस इज अ बोनस क्वेश्चन एंड द आंसर टू दिस इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण and your answer to is C. So that's all with regarding today's questions. I hope you've got maximum of them right. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.